Good morning everyone. How are you all? Welcome back to my channel Wow Maths. आप सभी सोच रहे होंगे कि आज मैं ऑन कैमरा कैसे हूँ, because I really personally feel that there is a less connectivity between the teacher and the student if the teacher is not virtually connected with the student on camera. So that's why I have decided to make my videos with camera on. My face is going to be visible to all my students. So let's start. So in today's lecture we are going to start a new chapter, fraction, from the Wow Maths book, exercise 4.1. As you can see, I have written question number 1. What is 3/4 of 4 by 5 kg? So now we are going to find out 3 by 4 of 4 by 5 kg. Of means multiplication sign, so we are going to replace this of with the sign of multiplication, 4 by 5 kg. So now we are going to cut the numbers which are going to be cut with the common divisor. So as we can see, in the numerator and denominator 4 is present. So 4 ones are 4, 4 ones are 4. So now we are going to multiply the numerator with numerator. 3 ones are 3 and 1 fives are 5. So that is 3 by 5 kg. So 3 by 4 or 4 by 5 will be 3 by 5 kg. So in question number 2, they have given 1 by 5 of 10. We need to calculate कि 1 by 5 of 10 कितना होता है. So how we are going to do it? अभी 1 by 5 of means multiply, 10 लिखेंगे. Now we are going to see कि 5 के टेबल में 10 किस नंबर पर आता है. So it's 5 ones are 5, 5 2s are 10. So 5 2s are 10. So इसको कट करके हमने यहाँ पर लिख दिया. So 2 1s are 2. So 1 by 5 of 10 is 2. So in the B part, as you can see, it is written 1 by 6 of 18. So now we are going to read the table of 6, right? 6 1s are 6, 6 2s are 12, 6 3s are 18. So 1 by 6 of 18 will be 3, right? So in this way we will get out, it is given 1 by 4th of 20. So 1 by 4 multiply with 20. So now we are going to read the table of 4. Now हमेशा एक चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है, whenever you are cancelling any common numbers, आपने हमेशा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की कटिंग करनी है. ऐसा नहीं है कि आप न्यूमरेटर और न्यूमरेटर को ही आपस में कट करके उसके कैंसिलेशन कर दोगे. लाइक 4 हमें यहाँ पर डिनोमिनेटर में दिया हुआ है और 20 हमारा यहाँ पर न्यूमरेटर है, तो हम इसकी कटिंग कर सकते हैं. 4 1s are 4, 4 5s are 20, so 5 1s are 5. So 1 by 4 of 20 will be. So in question number 3, 5. They are telling us to evaluate. Evaluate means we need to find the value of the question given. So how we are going to find the value? So in the first part, as you can see, they have given us two fractions here. 2 by 4 multiply with 8 by 14. जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि जब भी हमने कटिंग करनी है, हमने हमेशा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की कटिंग करनी है. ऐसे आपने नहीं करना है कि आप न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से कट कर रहे हो, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से कट कर रहे हो. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जहां पर स्टूडेंट्स ऑलमोस्ट मिस्टेक करते हैं. सो डोंट डू दिस. सो लेट्स start doing this question. A part, as you can see, 2 by 4 दिया हुआ है और 8 by 14 दिया हुआ है. अब आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है? आपने क्या देखना है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की कटिंग में ऐसा कौन सा कॉमन डिवाइजर है जिससे इन दोनों नंबर्स की कटिंग हो सकती है. जैसे आप देखो 2 और 4 दोनों 2 के टेबल में आते हैं, तो हम 2 का टेबल ले सकते हैं. 2 1s are 2, 2 2s are 4. ठीक है. अभी यहाँ पर अगर देखो 8 और 14, ये भी दोनों 2 के टेबल में आते हैं, तो हम इनके भी कटिंग कर सकते हैं. 2 4s are 8, 2 7s are 14. अब हमने ये कटिंग कर ली. उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है? अब देखो ऊपर नीचे भी हम कटिंग कर सकते हैं और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की हम क्रॉस सेक्शनल कटिंग भी हम कर सकते हैं. सो नाउ अब 2 और 4 वी कैन कैंसल विद 2. सो 2 1s are 2, 2 2s are 4. सो नाउ अभी जो ऊपर हमारे पास रह गया न्यूमरेटर में रह गया 1 into 2 और नीचे डिनोमिनेटर में रह गया हमारे पास 1 into 7, और ये किसी भी कॉमन डिवाइजर से आगे कट नहीं होंगे. सो वी विल राइट 2 1s are 2
and 7 ones are 7. So after evaluating the first part, our answer is coming to be 2 by 7. Now coming back to question number B part of this question, they have given you 2 by 6 multiply with 5 by 3. So with the same process we are going to cut these numbers as well. अभी हमें सबसे पहले देखना है ऊपर नीचे की कटिंग, ठीक है. अगर ऊपर नीचे नहीं होगी फिर हम क्रॉस कटिंग में जाएंगे इसमें, ठीक है. सो अभी 2 1s are 2, 2 3s are 6, हो गई कटिंग, ठीक है. बहुत इजी है. अब 5 और 3 दोनों किसी भी एक टेबल पर नहीं जा रहे हैं तो हम इसकी कटिंग नहीं कर सकते. अब हम चेक करेंगे कि क्रॉस में कोई कटिंग हो रही है कि नहीं. अभी यहाँ पर देखो, यहाँ पर 3 है डिनोमिनेटर में, यहाँ पर 5 है. 3 और 5 किसी भी एक टेबल में नहीं आते, सो ये नहीं होगी कटिंग. और 3 और 1 दे आर नॉट कमिंग. सो अभी हमारी बस इतनी ही कटिंग होगी इस क्वेश्चन में. नाउ वी आर गोइंग टू मल्टीप्लाई आवर न्यूमरेटर्स जो भी हमारे पास बच गए हैं, ठीक है. सो 1 5s are 5, 3 3s are 9. So after evaluating 2 by 6 multiplied by 5 by 3, we are getting our answer now as in the C 5 by 9. Question number 3, we have given one fraction 1 by 2 multiply with 0. So any number multiply with 0, whether it is a fraction or it's a whole number or a natural number, कोई भी नंबर अगर 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है, we are going to get our answer as 0 because 0 is a very powerful number. As now we can see that 1 by 2 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है, so we are going to get our answer as 0. Simple. सो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 0. इट्स वेरी इजी. कोई भी नंबर है, चाहे इट इज 1 लाख, 1 करोड़, 3 by 5, 9 by 4, माइनस, नेगेटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, अगर वो 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है, यू विल गेट द आंसर एज 0. सो हियर इन दिस केस 1 by 2 मल्टीप्लाई विद 0 विल गिव अस 0 only, right? So now coming back to D part of question number 3. Now we are going to see our numerator and denominator up and down. Now 24 और 5 के टेबल में 24 नहीं आता है. We have 5 5s are 25 होता है, तो नहीं आता है, तो इसकी कटिंग तो नहीं हो पा रही है. 3 और 5 बोथ आर प्राइम नंबर्स, ये भी दोनों किसी एक टेबल में नहीं आते हैं. तो नाउ वी आर गोइंग टू चेक आवर क्रॉस सेक्शनल न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर कि ऐसे क्रॉस में कोई कटिंग हो रही है. अब देखो यहाँ पर 5 है, here also we have 5, so it's 5 1s are 5, 5 1s are 5. ओके, नाउ अब हम इस क्रॉस सेक्शन, जैसे ही हमारे पास 1 आएगा, 1 से तो आगे कोई कटिंग होती नहीं है, तो यहाँ पे रुक गए. अभी यहाँ पे 3 और 24 को देखेंगे. अब कई बच्चों को कंफ्यूजन होती है कि हमने कट करके लिखना कौन सा नंबर है. अब जैसे मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, 3 के टेबल पे मुझे रीड करना है कि 24 कहाँ आ रहा है. सो 3 मल्टीप्लाई 8, 3 8s are 24 आता है ना, 3 8s are 24 होता है. सो जो ये 8 है जिसके ऊपर ये, जिस नंबर के ऊपर आ रहा है, उस नंबर को हमने यहाँ कट करके लिखना होता है. जैसे 3 1s are 3, 3 1s are 3, तो ये 1 मैंने यहाँ लिखा कट करके, और 3 8s are 24, तो इसकी कटिंग करके मैंने यहाँ पे लिख दिया. अभी आगे मेरी फर्दर और कोई कटिंग नहीं हो रही है. तो नाउ आई एम गोइंग टू मल्टीप्लाई माय न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर. इट्स 8 by 1 डिनोमिनेटर में कोई वैल्यू आप लिखो ना लिखो एक ही बराबर है, तो हम इसको 8 भी लिख. सो इन ई पार्ट we have 1 4 by 3 into 2 by 5. We need to evaluate this question now. So here is the mixed fraction is given. First we are going to convert this mixed fraction into the improper fraction. Okay, so 1 3s are 3, 3 plus 4 7 by 3 multiply with 2 by 5. Now 1 by 1, जैसे मैंने आपको स्टेप बताया था, we will check 7 by 3, 7 और 3 both are prime numbers, इनकी कटिंग नहीं होगी. 2 and 5 again they are prime number, इनकी भी आगे कटिंग नहीं होगी. अब हम क्रॉस में चेक करते हैं. 3 और 2 they are prime numbers, ये किसी कॉमन डिवाइजर में नहीं आते, कॉमन किसी टेबल में नहीं आते जिससे हम कटिंग कर सकें. 5 और 7 इनकी भी कटिंग नहीं होगी, तो अभी क्या करेंगे? कोई कटिंग नहीं हो रही, सो वी जस्ट सिंपली मल्टीप्लाई न्यूमरेटर विद न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर विद denominator. So 7 2s are 14, 3 5s are 15. So this is our answer. So in the F part, we have two mixed fractions given to us.
So first we are going to convert into the improper fractions. So 1 7s are 7, 7 plus 6, 13 by 7 multiply 3 3s are 9 plus 1 10 by 3. Now we are going to start our checking. For cutting किस किस की हो रही है? 13 और 7 both are prime numbers, they will not come in any common table. 10 और 3 प्राइम है, 3 के टेबल में 10 नहीं आता है. वी हैव 3 3s are 9, उसके बाद सीधा 3 4s are 12 होता है, तो वो नहीं कटिंग होगी उसकी. नाउ वी आर गोइंग टू चेक द क्रॉस कटिंग. 7 और 10 नहीं आता, 7 के टेबल में 10 नहीं आता है. 3 और 13 की भी आपस में कटिंग नहीं हो रही. सो द लास्ट स्टेप वी आर गोइंग टू डू दैट वी आर गोइंग टू मल्टीप्लाई आर न्यूमिरेटर विद न्यूमिरेटर. इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको इससे कर देंगे. 7 3s are, ठीक है. सो ये आ गया 130 by 21. So this is your answer after evaluating 1 6 by 7 multiply 3. I hope you like this video 1 by which 3. I have made for grade 5 kids. So in the next video I am going to share question number 4, 5 and 6 of same exercise 4.1. Do like, share and subscribe to my channel, and don't forget to hit the notification button for the future update. Thank you so much.